Assalamualaikum. My name is Muneeb Iqbal, and today I'm going to tell you the book I just recently read with the name of The Power of Now by Ekatre Tolle. Mr. Ekatre Tolle was born in Germany, and he came into enlightenment when he had nothing, and during his 30s or 20s he came into enlightenment. That he is not one, he is two. He started his book with showing that he is getting too many thoughts of different things, and how to avoid those things is to like he wanted to kill himself, or he wanted to say that he cannot live with himself. So he realized that there are two people, not one. Like he is two, not one. And as he moved forward about thinking about it, and he realized that his mind is using him. And it's in autopilot. It's on autopilot mode. And there are too many thoughts coming in from future, from past. Like he's not working in the present. He's working in future. He's working for future. That means he's working in future. He's having all the emotions of the past. So, for example, if there is something which he can achieve in life, he prefers not to do it because he have too many responsibilities, and he have too many worries that he needs to achieve a millionaire target in the future, so he can do blah 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 goal of his life. So the whole point of writing this book by Ekatre Tolle is that you are one, and there is no one other than you, and live in present. Like you're not one, you're two, but made a mistake. You're two, but live in the present moment. Don't let the experiences or the grievances or the happiness of past or future affect your present. So acknowledge the thought which comes into your mind from your past, accept it, it's there, but do not think about it. Similarly, do not, for example, if there is a grievant moment in your past, for example, something bad happened, now do not think about it, but accept it. Yes, it happens, and it is there, but do not think about it. Accept it and move on. Like work on your present, not the past, and that's how you are going to live your life in the present. Living in the present also means that you are living for yourself, your happiness, and the more you're gonna live in the in present, the more happy you will be. I guess that was the essence from this book, The Power of Now, and the whole idea is to avoid everything and close your eyes, see what's going on in front of your eyes, see your thoughts from your eyes, and that's it. So all the best. Live in the present. Don't let the grievances from your past or happiness or worries of your future affect your present. Thank you. अभी में रहोगे तो खुश रहोगे, और अभी में नहीं रहोगे तो खुश नहीं रहोगे. ये थोड़ी देर में आपको समझ आएगी. मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता था. शुरुआत करने से पहले मैं भूल गया था जो इन्होंने बुक में शेयर की है ऑथर ने, अहकात साहब. ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि ये बुक आप क्यों सुने या ये बुक आप क्यों पढ़ें, पावर ऑफ नाउ. उसको सिंपल उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू बताया कि एक दफ़ा ये कहीं जा रहे थे और एक बैगर देखा. बैगर एक रोड के किनारे पे बैठा हुआ था और उसने बोला, यार कुछ चेंज है तो दे दीजिए. उन्होंने कहा, भाई मेरे पास चेंज नहीं है, मैं नहीं दे सकता. उसने बोला, दे दो भाई. मैं नहीं दे सकता. तो साहब जो भी गुजर रहे थे उन्होंने बोला कि यार अब शायद वो एकाद तो खुद थे या स्टोरी के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ बाबा कि ये तुम जिस डब्बे के ऊपर बैठे हुए हो, इस डब्बे के अंदर क्या है? बोला पता नहीं, मैंने आज तक खोला ही नहीं.
बोला मुझे इससे क्या कंसर्न भाई, मुझे तो चेन से कंसर्न है। बोला नहीं नहीं इसको खोलो। छोड़ो यार, वह खोलो। उसने इंसिस्ट किया जो भी आदमी था। जब उस बाबा ने, फकीर आदमी ने उस डब्बे को खोला तो उसमें गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए थे, या गोल्ड पड़ा हुआ था। तो आज एक और तोले इस स्टोरी से हमें एक सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बुक को पढ़ने की वजह यह है कि आपका माइंड अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा ताला की तरफ से गिफ्ट है। इट्स अ गिफ्ट टू यू। यूज दैट गिफ्ट एंड बी सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी। और इस दुनिया के अंदर हैप्पीनेस मैटर करती है, सक्सेसफुल मैटर, सक्सेस हैप्पीनेस के ऊपर मैटर करती है। आप अगर जितने खुश होगे, जितनी हैप्पी होगे, जितने आप हैप्पी होगे उतने ही आप सक्सेसफुल होगे। जितना आप नॉन हैप्पी होगे, जितने डीमोटिवेटेड होगे, उतने आप नॉन सक्सेसफुल होगे। तो इस बुक का सेंट्रल आइडिया क्या है? आप खुश किस तरह रहेंगे। मैंने इस पर कुछ नोट किए हैं पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद ये साहब जो एकात ने शुरुआत में बताया कि इनको जो रियलाइजेशन हुई थी उस तरह हुई थी कि इनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आ रहे थे और उससे उनको पता चला कि यार मैं अपने साथ नहीं रह सकता। तो मैं अपने साथ नहीं रह सकता का क्या मतलब है? मैं अपने साथ नहीं रह सकता का मतलब है कि ये तो दो लोग हो गए, एक नहीं हुआ ना। आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ, दैट मीन्स आई एंड माई सेल्फ आर टू डिफरेंट पीपल। तो दो डिफरेंट लोग हो गए। वहाँ से उनको रियलाइजेशन हुई कि अच्छा मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, मेरे अलावा भी कोई है जो मेरे साथ रहता है। तो वहाँ से उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया और उस पर और सोचना शुरू किया। जब सोचना शुरू किया और आंखें बंद की तो उनको एनलाइटमेंट हुई और उन्होंने देखना शुरू किया कि मेरे आगे से कौन से थॉट्स जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो नेगेटिव थॉट है कि पॉजिटिव थॉट है, कि वो क्या थॉट है। उन्होंने बोला हाँ जी है। अब जैसे वो अकड़ू होकर बैठे हुए, अगर अकड़ू होकर बैठे हुए होते और उनको दर्द हो रहा होता तो वो ये नहीं करते कि हाँ यार दर्द हो रहा है, परेशान हो जाते। वो तो अच्छा जी दर्द हो रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। इसके आगे चलते हैं। No matter who or where you are shown how to free yourself from enslavement to the mind. Enter into the enlightened state of consciousness and sustain it in every life. तो don't read, listen from your mind only. मतलब आप अपनी दिमाग को अंदर ना घुस जाओ, अभी में रहो, मतलब अभी प्रेजेंट स्टेट में रहो और पुराने किसी इवेंट की वजह से आज अपना मूड ख़राब ना करके बैठ जाओ कि यार क्योंकि वो मेरी टेस्ट में फेल हो गया था तो मैं ना यार बस मेरा मूड ख़राब है। तो ये मूड ख़राब का क्या मतलब है? मूड ख़राब इज़ बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट। तो अपने पास्ट इवेंट को ख़त्म कर दो। मूड ख़राब वाला जो फीलिंग है आपकी, उस मूड ख़राब की फीलिंग आई कैसे? पास्ट इवेंट की वजह से ना। तो मूड ख़राबनेस को ख़त्म कर दो। इट्स नॉट ईजी बट इट्स पॉसिबल। उसको सोचो मत, अभी के अंदर रहो, अभी क्या हो रहा है उसमें रहो। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे और उसके अंदर मैंने उसके कुछ सेंट्रल आइडियाज़ लिखे कि आपके लिए मैं ऐसी क्या चीज़ बताऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चैप्टर 1 था जिसका नाम था यू आर नॉट योर माइंड। इसके अंदर उन्होंने कहा कि Eckhart point out a lot of thinking is unnecessary and repetitive, even destructive or at least not helpful, like worrying. यहाँ मैसेज ये नहीं है कि do not think, but do not overthink. मतलब ज़्यादा मत सोचो, think करो। अगर think करना ही इतना ज़रूरी है तो think करो, but do not overthink. You are not your mind का सिंपल मतलब ये है कि आप अपने माइंड के अंदर खो मत जाइए। ना के कल में, ना के फ्यूचर में। या फ्यूचर में है ना मैं एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर, यार क्या मतलब? अभी में रहो, फ्यूचर की फ्यूचर में रहने दो, पास्ट की पास्ट में रहने दो। आगे के कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया पास्ट और फ्यूचर भी कुछ नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि अभी में जीना सीखें। चैप्टर 2 के अंदर वो बोलते हैं कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। अब मैंने उन्हीं के पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि हाउ टू इरेडिकेट इट, कि यार आप जो अभी
अभी में जीना कैसे, अभी मतलब इतना आसान काम तो नहीं है ये कोई कि अभी मैं जी लूँ और जो मेरे कॉन्शियसनेस आ रही है, जो पास्ट आ रहा है, जो फ्यूचर आ रहा है, उसको नहीं इग्नोर कर दूँ। इतना आसान काम तो नहीं है, ये इग्नोर तो करना ही नहीं है। यहाँ पे ये रखना है कि हाँ जी है, बट उसको करना नहीं है। तो इतना आसान काम नहीं है। तो एकार्ड साहब ने ही अपनी बुक्स के अंदर ये पॉइंट्स बताए। बोला कि फोकस करो अपनी अटेंशन को अपने अंदर की फीलिंग को पे, ये फोकस करो अपने अंदर की फीलिंग को एंड एक्सेप्ट करो कि वो वहाँ है, ठीक, लेकिन उसके बारे में सोचो नहीं। यानी मुझे ये याद है कि यार मेरा वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ था या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसके बारे में सोचूं नहीं। मुझे पता है कि हाँ ये जी फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग को मैं सोचूं नहीं कि हाँ जी फीलिंग क्या है, क्यों है, कैसे। मैं अवेयर रहूं कि वो है, लेकिन सोचूं नहीं, इग्नोर भी नहीं करनी है। अभी में रहो लेकिन उसको ऑब्जर्व करते रहो। इस कॉन्शियस रखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, बट सोचो मत उसको। यही है पावर ऑफ नाउ। इमोशनल मम्बो जम्बो जो चल रहा है अपने अंदर, उस पे उसको फोकस एज एन उसकी फीलिंग को अपने अंदर मत लाओ, लेकिन रखो कि हाँ जी ये है, लेकिन अभी में रहो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो ये ना सोचूं यार पास्ट में मेरी प्रेजेंटेशन खराब हुई थी तो ये भी खराब होगी। नहीं नहीं नहीं, ये रखो कि हाँ जी ये हुआ था और मैं अभी में रहूं और अभी मैं अपनी पूरी मेहनत करूं एंड पूरा बिलीव रखूं कि हाँ जी आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आपको, अगर इसके अंदर बुक के अंदर उन्होंने बताया कि भाई पास्ट की बहुत सारी बातें कही थी, तो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। एक हमारी कंसल्टेंट के साथ टाइमलाइन थेरेपी का। तो हम सब की बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कुछ आदतें हमें बड़े होकर आती हैं। अगर किसी को चीखने की आदत है तो बचपन में कभी ना कभी उस पर कोई चीखा होता है। तो टाइम लाइन थेरेपी में ये होता था कि आप पास्ट में जाते हैं और आप आहिस्ते आहिस्ते पास्ट में जाते हैं, फौरन जंप मार के नहीं बचपन में चले जाते। आप आहिस्ते आहिस्ते पास्ट में जाते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था, मेरे ऊपर लास्ट कौन चीखा था या लास्ट गुस्सा कौन हुआ था। आप वहाँ पे जाते हैं और एज अ थर्ड पार्टी उस चीज़ के मतलब उस इवेंट पे पहुँचते हैं। फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले हुआ था, आप 5 साल पहले वहाँ खड़े होते जब आपके अब्बू ने आपको डांटा था क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। तो आप उस इवेंट पे आए और उस इवेंट के ऊपर खड़े हो जाएं एज अ थर्ड पार्टी और देखें क्या हो रहा है। यानी आपके अब्बा आपको डांट रहे हैं और किस बात पे डांट रहे हैं, उससे लर्निंग लें, उससे एसेंस लें और आप चले जाएं। तो एकाद साहब ये कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट की इवेंट से की इमोशंस ना लाएं। यानी अगर आप आज चीख रहे हैं वो आज चीख इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप पुराने, या अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब हुई थी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, तो पहले प्रेजेंटेशन खराब हुई थी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिर प्रेजेंटेशन खराब होगी, क्योंकि आज से आपने सबक ले लिया है। उसकी फीलिंग ना लाओ। उसकी फीलिंग क्या है, मैं नहीं आऊँगा। अगर आप फीलिंग लाओगे तो क्या होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दिस प्रेजेंटेशन द बेस्ट वन, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी कि यार वो तो ख़राब था या तो ये था वो था, तो आप ये प्रेजेंटेशन बना ही नहीं पाओगे। तो एकाद साहब का मकसद है कि आप अपनी पास्ट की फीलिंग्स को अपनी प्रेजेंट की अंदर ना लाएं, अपने नाव की फीलिंग में ना लाएं। और एकाद साहब ये नहीं कह रहे कि आप ये कर सकते हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आपका माइंड ये कर सकता है। आप खुद ये, मतलब एकाद साहब कह रहे हैं आप ये खुद कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट द पॉइंट इज के बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू, डू नॉट इग्नोर इट, एक्सेप्ट इट, लेकिन डू नॉट गेट द फीलिंग ऑफ दैट पास्ट इवेंट इन योर करंट इवेंट। आगे चलते हैं। उन्होंने एक कोट कहा बुक के अंदर, सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई एंड फाइंड दैट देयर इज नो डेथ। मैं रिपीट करता हूँ, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज डाई बिफोर यू डाई एंड फाइंड दैट देयर इज नो डेथ। अच्छा, एक आध साहब मुसलमान नहीं, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा है कि एंड फाइंड दैट देयर इज नो डेथ। एकाद साहब का इस कोट से मुराद ये है कि जिंदगी में
अगर हम आज जीना सीख जाएं, मरने से पहले मरना, यानी अगर मुझे पता होगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो तो फिजिकल है ना, और अगर मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि मैं मर गया। That there is no death। तो मरने के बाद भी मेरा तो फिजिकल प्लेन मरेगा, मैं थोड़ी मर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप आज मेरे मतलब वो उनका पूरा फोकस इस पूरी बुक के अंदर ये है कि आज में रहो, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप कर दो कि जबरदस्त हो जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस पे काबू पा लो। दैट्स हिज फोकस इज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव सोच को लाओगे तो नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ पे इतनी बीमारियां फैलती हैं या फड्डे होते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप का बताया, एकार्ट साहब ने इस बुक के अंदर रिलेशनशिप का बताया, एकार्ट टोले ने, कि रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होता, रिलेशनशिप स्पिरिचुअल होता है, यानी नॉन फिजिकल होता है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो अगर वो ताउम्र रहने वाला प्यार होगा तो कैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुझे उसकी फिजिकल बॉडी से कुछ लगाव नहीं होगा। या मैं अपने अम्मा अब्बा से प्यार करता हूँ तो उसके अंदर जज्बात का ताल्लुक है, फिजिकलनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ तो उसके अंदर जज्बात का ताल्लुक है, फिजिकलनेस से ताल्लुक नहीं है। तो एकार्ट साहब ये कहते हैं कि आप अपनी फिजिकलनेस को ना समझो, मतलब फिजिकलनेस इज नथिंग। आप आपका जो अंदर का जो स्पिरिचुअलनेस है वो असल चीज है। अच्छा, और उन्होंने क्या किया कि मूविंग डीपली इनटू द नाउ, फ्यूचर और पास्ट टाइम सिर्फ आपके दिमाग ने बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं। थिंग्स लाइक 4D, थिंग्स लाइक थेरेपी लिखी। अच्छा, एकार्ट साहब ये कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग ने बनाया होता है कि यार इस ज़माने में ये हुआ था, इस ज़माने में ये होगा। मतलब ऐसी आप खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए अभी में रहो। अब आपको जैसे पता है कि माइंड साइंसेस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ अपनी जगह पे आंखें बंद करके किसी को भी हील कर सकता हूँ। वो हील इस तरह कर सकता हूँ कि मैं अपने दिमाग को क्लोज, अपने आंखों को बंद करके, अपनी सराउंडिंग को बंद करके अपने दिमाग की आय देखूंगा, अपनी थर्ड आई से देखूंगा। 2 आय जो फिजिकल है उनसे नहीं, थर्ड आई से, अपनी स्पिरिचुअल आई से कि क्या हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं कि यार बाबा बैठे होते हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। ये कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बाबा ने इतना मेडिटेट किया होता है कि उनको समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको मतलब सिर्फ बाबा ही मैं क्यों बोलूँ, बाबा के अलावा जितने भी ऐसे जो माइंड साइंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे लोगों के पास जाते हैं आप तो फौरन बता देते हैं कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। वो इसलिए बता देते हैं क्योंकि दे हैव बीन मेडिटेटिंग सो मच कि उनको आपके एक्सप्रेशंस, उनको आपकी फीलिंग्स से पता चल जाता है। आपकी बॉडी, एकार्ट साहब ने ये भी बताया कि आप जब कुछ भी फील करते हैं तो आपकी बॉडी उस तरह का रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। तो वो लोग जो मेडिटेट कर चुके होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी, जो पावर ऑफ आज की दुनिया में रहते हैं, वो फौरन बता देते हैं कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वे क्या है आज की दुनिया में, जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है, मैं अब समअप करूंगा इस बुक को, पावर ऑफ नाउ को, कि आप मेडिटेट करना शुरू कर दें। एकार्ट साहब ने तो बहुत सारे बताए, जैसे सरेंडर बताया उन्होंने, इन बॉडी बताया, बहुत सारी चीज़ बताई, जिसमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से मेडिटेट करते हैं। कोई एक्शन बना के भी करता है, जैसे यूं करके बैठ जाता है, पलोठी बांध के और यूं करके, मतलब एक पैर के ऊपर एक पैर करके। कुछ लोग बस सिंपल एक पोजीशन में बैठ जाते हैं। कुछ लोग जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी है इसमें आप सोए नहीं। मतलब आपने फॉर एग्जांपल मेडिटेशन क्या होती है, किस तरह होती है, इसमें ये ज़रूरी होता है कि आप सोए नहीं। अच्छा, मेडिटेशन
ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ आ रहा होता है। और पावर ऑफ नाउ का जो अब तक मैं बता चुका हूँ और मैंने जो पढ़ा है उसमें यह है कि आप अभी में रहना सीखो। अभी में रहना इतना कोई आसान काम नहीं है कि आप अभी में रहना सीख लें। मतलब मैं अगर कोई चेयर देख रहा हूँ तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की बिना पे मुझे कोई दूसरी चेयर भी याद आएगी, लेकिन मैं इसमें एक आ जा रहा है कि मैं उससे सिर्फ एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मुझे याद हो, उसकी फीलिंग याद ना हो, अगर वो टूट गई हो या बहुत अच्छी चेयर हो वो चीज़ ना है, लेकिन मैं उस अभी की दुनिया में रहूँ। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए वो मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस हैं जो जिसके थ्रू आप आज के वक्त में रह सकते हैं और अपने माइंड को आप एक्सरसाइज करते हैं अपने माइंड के साथ कि भाई आप अपने माइंड को काबू में करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। और इसका सिंपल तरीका जो मैंने बताया मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप आंखें बंद करें, सोए नहीं, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी थॉट्स को देखते रहें। जब 5-10 मिनट गुजर जाएंगे और थॉट्स खत्म, आहिस्ते आहिस्ते थॉट्स खत्म होना शुरू होंगी और आपका दिमाग ब्लैंक करना शुरू होगा। वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होगी। वो पॉइंट होगा जहाँ पे आप अपनी अवेयरनेस से अभी की अवेयरनेस से आप अभी की कॉन्शियसनेस से अभी के हालात से आप देखना शुरू होंगे। कंक्लूजन इस बुक का ये है कि आज की दुनिया में रहें, नेगेटिविटी को ना लाएं। पैसा आने से खुशी नहीं मिलती या गाड़ियाँ आने से खुशी नहीं मिलती, एसेट्स आने से खुशी नहीं मिलती, 4-5 बीवियाँ होने से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है आपके खुश होने से। यानी अभी एक बहुत सिंपल एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार तुम्हें खुशी कब होगी। उन्होंने मेरे साथ एक एक्सरसाइज की थी, यार तुम्हें खुशी कैसे होगी। मैंने कहा यार बड़ा घर हो जाएगा तो होगी। तो उन्होंने कहा तो इसका मतलब अभी खुश नहीं हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। उन्होंने बताया ये पावर ऑफ नाउ है कि आप आज रहना सीखें, आज की दुनिया में रहना सीखें, आज अभी के अंदर रहना सीखें, ना कि पुरानी फीलिंग लाएं। ज़रूर पढ़िए ये बुक, बल्कि आई वुड रिकमेंड यू कि बुक से पहले आप एकार्ट टोले साहब जो हैं उन साहब की यूट्यूब पे वीडियोस देखें। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक दफ़ा ना पढ़ें, कोशिश करें एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा करें, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है। अगर आपको बोरियत भी फील हो रही है ना, तो आप बोरियत उसको समझेंगे तो बोरियत फील हो रही है। अगर आप ये सोचेंगे आपकी ग्रोथ है तो आप ग्रोथ के हवाले से सोचेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस ऑल अ सक्सेसफुल लाइफ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।